So hello all, I welcome you all in our next video of English Literature Movements. Periodic Test 1, Lesson 1, The Lost Child, which is getting continued for class 9th, right? So if you remember in our last video, right, we started this story, and the story was all about a child who goes to a fair with his mother and father, right? So in that fair he get attracted towards all the things that he see in that particular fair, like for example dragonflies, dove, that roundabout swing, then that flower seller towards the flowers, towards the sweets, and towards many other things, right? Which time after time he also he request his father or mother to buy the things for him, but his father and mother, especially his father, denied every time, right? So suddenly there comes a time when he get lost means वो खो जाता है, or get separated from his mother and father, right? Then he uh, started or start searching, then he start searching his father and mother in the in that particular fair, right? So what happened is, when he is not able to get his mother and father anywhere in that particular fair, so he went, or he tried to enter into a shrine, or inside a shrine means temple, right? So where a group of people were there, and because of which he was about to come अंडर द फीट ऑफ दोस मैन, राइट? सो वो पैरों के नीचे आने वाला होता ही है कि वो चिल्लाता है उस टाइम, ही क्राइड like in a very loud pitch, right? So inside that temple there was a man who found this child, right? And he escaped or rescued that child, and he took him outside the temple and asked him that how he reaches here, or how he reached here, right? So without telling anything, the child continues sobbing or weeping or crying, you can say, right? So that then that man tried or tries to make him laugh, or to make him a little bit calm. So he also and at that time he took him to the roundabout. He took that child, or he take that child to the roundabout swing, and he tells him to have a swing on that roundabout swing, right? But he refused and continued to sob, right? So till here we have studied in our last paragraph. So let's see what happens further in the story. So let's proceed, class. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swine cobra. द मैन ही डिड मीन्स वेंट. अब वो आदमी पहले तो वो उस बच्चे को लेकर के वो झूले वाले के पास जाता है, जहाँ पे वो उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम झूला झूलना चाहोगे? तो वो मना कर देता है, मना भी नहीं करता, मतलब तेज से रोने लगता है. एंड ही वॉज ओनली आस्किंग फॉर हिज मदर एंड फादर, राइट? सो वो उसके बाद फिर वो स्नेक चार्मर मीन्स जो सपेरा होता है उसके पास उस बच्चे को लेकर जाता है, राइट? स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट मतलब वो अपनी बांसुरी बजाता रहता है. ऑन टू द स्विंग कोबरा मीन्स रोलिंग, मतलब वो जैसे आपने देखा होगा सांप अपना फन उठा के हवा में कैसे लहराता है, वो उस लहराते हुए कोबरा के पास उस बच्चे को लेकर जाता है. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड. अब वो बहुत प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट, वो बहुत रिक्वेस्टिंग मूड में उस बच्चे से कहता है कि ये देखो यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से ये कोबरा और सपेरा क्या कर रहा है, वो सपेरा धुन बजा रहा है और वो कोबरा कैसे हवा में डांस कर रहा है. तो वो उससे बोलता है उसको देखने के लिए. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स. शट मीन्स क्लोज्ड. पर वो क्या करता है, वो अपने कानों में उंगलियां डाल के, अपनी उंगलियों को डाल के वो अपने कानों को बंद कर देता है. एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन मीन्स फोर्स और फोर्सली, ठीक है? और वो
अपनी डबल मतलब दुगनी तिगनी आवाज़ में बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। और क्या चिल्लाता है? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और सिर्फ यही एक रट उसने काफ़ी देर से लगा रखी थी, जब से वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से पहले तो वो इन सारी चीज़ों के लिए वो ज़िद करता है अपने मम्मी पापा से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो हर चीज़ जो देखता है उस मेले में, पहले तो वो ज़िद करता है। पर अब जबकि वो सारी चीज़ें इसको फ्री में मिल रही थी उस दूसरे इंसान से, जो जिसने इसको पाया था उस मेले में, अब वो सारी चीज़ें उस बच्चे को फ्री में दे रहा था या मिल रही थी। पर अब वो सिर्फ क्या चाहता था? अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहता था, राइट? सो द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। अब वो उसे बैलून वाले के पास लेके जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब वो ये सोचते हुए उस बैलून वाले के पास ले जाता है कि इसके जो ब्राइट कलर्स हैं बैलून्स के, मतलब जो रंग बिरंगे कलर्स जितने हैं बैलून्स के, वो शायद इसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। डिस्ट्रैक्ट मीन्स इसे इसका रोना बंद करवा देंगे, और हो सकता है इसकी अटेंशन भी उन बैलून्स की तरफ चले जाए और ये एकदम चुपचाप हो जाए, उनसे खेलने लगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून्स। अब वो बोलता है क्या तुम ये रेनबो कलर वाले जो बैलून्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के और क्वालिटी के जो बैलून्स हैं, वो तुम लेना चाहोगे? ही परसुएसिवली आस्क्ड। परसुएसिवली मीन्स पोलाइटली, बहुत पोलाइटली, बहुत इन अ वेरी काइंड मैनर ही आस्क्ड फ्रॉम दैट चाइल्ड, वुड यू लाइक टू टेक दिस बैलून्स? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स। और अब वो पहले तो उसने अपने कान को बंद कर लिया था जब वो उसको सपेरे वाले के पास लेके गया था, और अब इसने अपनी आंखें ही हटा ली है, मतलब वहाँ से मोड़ ली है अपनी आँखों को, अपने चेहरे को मोड़ लिया है उन बैलून्स की तरफ। अब वो नहीं देख रहा है, मीन्स ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दोज बैलून्स फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, एंड जस्ट सॉफ्ड मीन्स सिर्फ रोता रहा। ही वॉज वीपिंग, मतलब वो सिसकियाँ ले लेके बस रो ही रहा था, और उसने बैलून से अपनी नज़रों को हटा लिया। और क्या बोल रहा था? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। बट फिर भी वो इंसान उस बच्चे को हंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि वो बच्चा रोता रहे। Tore him to the gate where the flower seller sat. Bore him to the gate where the flower seller sat. Bore means to take और took him, right? वो उसे ले गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो रोता रहे, तो इसलिए अब उसे उस गेट के पास ले गया जहाँ पे वो फ्लावर सेलर मीन्स वो फूल बेचने वाला इंसान बैठा था और अपने फूलों को बेच रहा था। लुक, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर चाइल्ड। अब वो उससे बोलता है कि क्या तुम इसे, इन अच्छे अच्छे फ्लावर्स को, जो डिफरेंट वेराइटीज़ और क्वालिटीज़ के फ्लावर्स थे, क्या तुम इसे स्मेल कर सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। अब उससे पूछता है कि क्या तुम्हें एक माला, गार्लैंड मीन्स माला, क्या तुम्हें इनमें से कोई भी एक माला चाहिए ताकि तुम अपने गले में उसको पहन सको, राइट? सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। और अब वो उस जो फ्लावर सेलर के बास्केट मीन्स जो वहाँ पे उसके बास्केट में, डोलचियों में वो फ्लावर्स पड़े हुए थे, उनसे भी वो नज़रें हटा लेता है, मीन्स अपना मुंह फेर लेता है। उसे भी अब वो फ्लावर्स भी नहीं चाहिए। और आपने थोड़ी देर पहले स्टोरी में पढ़ा होगा पिछले वीडियो में कि किस तरीके से वो ज़िद करता है उन गार्लैंड्स को लेने के लिए अपने मम्मी पापा से, जब वो अपने मम्मी पापा के साथ में था इस मेले में। पर अब जब वो यही चीज़ें, सारी चीज़ें फ्री मिल रही है, then he continuously saying no. Why? Because he is only in the need of his mother and father. And reiterated his sob. Reiterated means continued. और वो रोता चला गया और क्या कहते हुए? I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. Thinking to humor means make happy, एंड डिस्कॉन्सुलेट मीन्स सैडनेस, राइट? अब वो ये सोचता रहा कि इसके जो सैडनेस है, मतलब इसका जो रोना है और इसका जो दुख है, इसका जो कष्ट है, इसको मैं अब पूरी तरीके से किस में बदल दूँ? खुशियों में बदल दूँ, इसको खुश कर दूँ, बजाय इसके कि इसका सिर्फ रोना ही निकलता रहे या रोना ही होता रहे। तो वो सोचता है कि अब
बाकी सब चीज़ें तो मैंने ट्राई कर ली, अब एक और चीज़ें ट्राई और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे ट्राई करना चाहिए ताकि इसके सैडनेस को, मतलब इसके आंसुओं को और इसके रोने को मैं रोक सकूं और इसको क्या दे सकूं, थोड़ी खुशियां दे सकूं, थोड़ी हंसी दे सकूं। तो इस वजह से वो उसे कहाँ लेके जाता है, उस स्वीट वाले के पास, मीन्स जो मिठाई बेचता रहता है, ठीक है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और उसी काउंटर पे उसे लेके जाता है जहाँ वो इंसान मिठाई बेच रहा होता है। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, अब उससे पूछता है कि कौन सी मिठाई तुम खाना चाहोगे, मुझे बताओ। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, अब जो चाइल्ड था, जो बच्चा था वो छोटा, वो यहाँ से भी उसने अपना मुंह वो फेर लेता है और सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ कॉन्टिन्यूसली रोता रहता है, मीन्स अब वो रो ही रहा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि पहले ये सारी स्वीट्स देख के उसके मुंह में पानी भी आ जाता है, ठीक है। और वो अपने मम्मी पापा से जिद भी करता है कि मुझे वो मिठाई चाहिए, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, क्योंकि बर्फ़ी इसकी फेवरेट स्वीट रहती है। बट यहाँ पे जब उसे वो फ्री में मिल रही है तो भी वो लेना नहीं चाहता है, और he is only sobbing means he is only weeping means crying, and every time he is denying that he don't want anything from that man, right? The only one thing that he want is, और ही इज सेइंग इज आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो सिर्फ यही वो रोते रोते हैं शुरू से लेकर के, शुरू से मतलब जब ये जिस टाइम से इस इंसान को वो मिला है, वो शुरू से सिर्फ एक ही रट लगा रहा है कि मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, राइट। So class, here we end this story, and the story was written by Mulkraj Anand. So let's continue. Students, today we have completed this chapter, right? So this chapter has already we have completed this chapter, and in our next class we will start a new story, right? So in our next class we will start a new story, that is lesson 2, The Adventure of Toto, right? सो होमवर्क, यू ऑल हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स ऑफ टुडेज़ लेसन, मतलब आज के वीडियो में जो भी मैंने वर्ड मीनिंग बुक में आपको लिखा हुआ है, मतलब अपने बुक में मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लेन करने के समय में, ठीक है, वैसे ही वर्ड मीनिंग आपको अपने कॉपी में करना है और सिर्फ मीनिंग आपको अपने बुक में लिखना है, राइट। सो यू ऑल हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स ऑफ टुडेज़ वीडियो in your classwork copy and meanings in your book. You all have to learn all these word meanings of lesson 1, and also you all have to learn all the meanings of lesson 1 till from beginning till end, right? And I'm also going to give you some sheet, you can say, or pages in which question answers which are given at the back of your book will be written, and you have to copy down those question and answers and also the extra question and answers in your copy, right, with putting a lesson name, lesson number, date on a very fresh new page, right? So let's proceed further. So this is where we end our topic for today. Thank you all, stay safe and take care.